Good morning, students. In today's session, what we have to learn? We have to learn about the physical properties of haloalkanes. As we know that, what are the physical properties? Generally, their texture, how, in which state they are present, solid, liquid, and gases. What are their boiling points and melting point? These all are considered as a physical property. इन आउट ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का जो कंपैरिजन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैलोअल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे हाउ दे इंक्रीज एंड हाउ दे डिक्रीज. तो फर्स्ट इफ वी गो विद द coloration of the haloalkanes, so generally as we know they are RF fluoroalkanes, then chloroalkanes, then bromoalkanes and iodoalkanes. These are the four important haloalkanes which we studied. Out of that, only fluoro and chloro are the colorless. They don't have show any color because they have a, we can say, because in the presence of light they does not excite their electrons, and if they excite it, there is a no d orbital, empty d orbital, so there is a no transitions are occurred, so that's why they are the colorless. But in case of bromine and iodine, they have a empty d orbitals. So due to the presence of empty d orbital, when they expose in the light and then expose in the sunlight, there is a transitions of the electrons are occur and they show us respective colors. Just for example, bromoalkanes generally found as a brownish in color, and iodine's compound or iodoalkanes are generally found in a violet in color. This is all about the coloration. That's it, and it will be only depend on their how much the orbitals are empty and how the electrons are transit from its ground state to the higher state. Next, we will discuss about the boiling point. What is actually a boiling point? As we know that boiling point is that temperature in which a liquid, a general definition, a liquid changes into its gaseous phase, or in particular if we consider its definition in the vapor pressure, so that vapor pressure on with the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the vapor pressure in its gaseous state. But why boiling point is here is important? Because boiling point यदि हम बात करें, it is totally dependent on the molecular mass, or we can say van der Waals force. ठीक है? क्यों हम इसमें बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास van der Waals force इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले हम बात कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में होगा क्यों हम van der Waals force पे ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि van der Waals force इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो जब कोई भी कंपाउंड जो है वो लिक्विड स्टेट में और उसको गैसेस स्टेट में ब्रेक डाउन करना है, गैसेस स्टेट में पहुंचाना है, तो उसके बाद तो ये हमारा एक कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है. तो इस कंपाउंड के बीच में जो एटम्स होंगे उन एटम्स में होगा इंटर एटॉमिक फोर्स. इस कंपाउंड के बीच में जो भी एटम्स होंगे उनमें होगा इंटर एटॉमिक फोर्स. तो और ये दोनों कंपाउंड्स आपस में जिस फोर्स से अट्रैक्टेड है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. हमें इस फोर्स को ब्रेक डाउन करेंगे तभी दीज एटम्स आप दीज कंपाउंड्स जो है वो अलग अलग ज्यादा स्पेस कवर करेंगे और दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट. तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट में हमें कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन दीज टू मॉलिक्यूल्स और दीज टू कंपाउंड. तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू van der Waals force, and van der Waals force इज व्हाट कि दो कंपाउंड जो है, फॉर एग्जांपल वी कंसीडर हेलोअल्केन, तो हेलोअल्केन एक, ये दूसरा हेलोअल्केन, इन दो हेलोअल्केन्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो हमारा क्या कहलाएगा? van der Waals force. और हम 11th में पढ़ के आए हैं कि van der Waals force आर द डिफरेंट टाइप्स, डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, लंदन फोर्स, डायपोल मोमेंट, बहुत सारे डायपोल्स होते हैं. तो बेसिकली van der Waals फोर्स हमें इसलिए कंसीडर करना है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट. अब ये जब van der Waals फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें मानना है कि van der Waals फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस van der Waals फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. इट मीन्स कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा van der Waals इंटरेक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. कैसे इंक्रीज होगा? यदि हम कंसीडर करें फॉर एग्जांपल देयर इज अ carbon chain with chlorine. It means this is a symbol of butane. Hello, यदि हम
कंसिडर करें क्लोरीन, फिर इज क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। तो क्लोरोब्यूटेन है एक मेरे पास, और मान लो एक क्लोरोमीथेन है, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन की जो चेन है वो बहुत छोटी है, और क्लोरोब्यूटेन की चेन क्या है, बहुत बड़ी है। जितना ज्यादा या बड़ी है, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। ज्यादा सरफेस एरिया है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा सरफेस है टू अट्रैक्ट फॉर द अट्रैक्शन ऑफ वाटर और फोर्स। यहाँ से भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी अलग अलग जगह पे है। और यही मैं बात यदि क्लोरोमीथेन की बात करूँ, तो क्लोरोमीथेन क्या छोटा सा मॉलिक्यूल, उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा सा है। तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के पास तो ये उसके पास सरफेस क्या है, कम। और वॉन डेर वाल इंटरेक्शन कम है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसको ब्रेक करने के लिए, वॉन डेर वाल फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। इजीली क्या हो जाएगा, इजी थोड़े से टेम्परेचर में ही वो ब्रेक होके गैसेस स्टेट में चला जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे हमारी चेन बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इट मीन्स वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ रहा है, और वॉन डेर वाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। इट मीन्स तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन में यदि हम बात करें, तो जैसे जैसे हम चेन बढ़ा रहे हैं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि ब्रांचिंग हो जाए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए। पहला है क्लोरोब्यूटेन का, दूसरा मैंने इसमें से एक कार्बन को हटा के एज अ ब्रांच कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2-मिथाइल क्लोरोप्रोपेन, यहाँ हम बोल सकते हैं क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। थर्ड हमने वापस एक ब्रांच कर दी, एक ब्रांच और हटा के यहाँ पे हमने ये बता दिया 2 ब्रांच कर दी, ठीक है। अब हम इसकी बात करें कि इनमें यदि हम कंपेयर करें कि किसकी, यदि हम इन दोनों में कंपेयर करें, इसके अंदर क्लोरोब्यूटेन और क्लोरोब्यूटेन एंड 2-मिथाइल क्लोरोब्यूटेन के अंदर यदि हम कंपेयर करें, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो हमें सिंपल से क्या ध्यान देना है, हमें देखना है कि सरफेस एरिया कहाँ ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा, वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा, वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो यहाँ एक सीधी चेन है, सिंपल स्ट्रेट चेन है देयर, और यहाँ पर क्या हो गया, चेन छोटी हो गई, इसका मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया कम हो रहा है, वॉन डेर वाल फोर्स कम हो सकता है। तो हम सिंपली एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ब्रांचिंग, यानी कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि इन दोनों में इनका और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, इट मींस द फर्स्ट इज अ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द सेकंड वन। दिस इज द सिंपल एग्जांपल। इफ वी कंपेयर, जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ वी कंपेयर कि मैम इफ वी कंपेयर दैट कि हेलोजन ग्रुप भी अलग है, सेम एल्काइल ग्रुप है, जैसे क्लोरोमीथेन हो गया और ब्रोमोमीथेन हो गया। अभी तो हमने बात करी थी कि एल्काइल ग्रुप्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं यदि हेलोजन ग्रुप्स डिफरेंट है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा। तो वहां भी हम सिंपल है कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स की बात करते हैं, वी नो दैट कि हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और दे आर बिलोंग टू द सेम ग्रुप, और इन मूविंग अप टू डाउन इन द ग्रुप द साइज इज इंक्रीज। तो आयोडीन will have a bigger size, bromine है then smaller, chlorine then smaller, and fluorine का जो साइज है आउट ऑफ दिस फ्लोरीन ऑल क्या है, सबसे छोटा है। तो जितना छोटा साइज है, इट मीन्स जब वो एल्किल चेन में अटैच्ड होगा, जितना छोटा साइज है, तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हम यदि कंपेयर करें, तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का है। तो आयोडीन जब हमारे पास एल्किल चेन में अटैच है, तो वो सरफेस एरिया को ज्यादा कवर करेगा, तो वॉन डेर वाल फोर्स का इंटरेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब हमारे पास अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो हम सीधे बोल सकते हैं एल्काइल चेन इज सेम, और क्लोरीन, ब्रोमीन डिफरेंट हेलोजन ग्रुप से, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब आयोडीन ग्रुप अटैच है, और सबसे कम कब होगा, जब फ्लोरीन ग्रुप अटैच होगा। दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ वी कंपेयर, इफ वी आस्क यू कि व्हाट आर द बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज कीजिए। इसका ब्रोमोमीथेन है मेरे पास, और एक क्लोरोमीथेन है। इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हमने देखा क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन का ऑब्वियसली साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इट मींस वॉन डेर वाल फोर्स इस पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे, क्लोरोमीथेन से। तो जब हमारे पास सेम एल्काइल ग्रुप हो, तो हम डायरेक्ट चेन से देखेंगे,
ब्रांचिंग हो गई तो ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। और जब हमारे पास हैलोजन ग्रुप भी डिफरेंट है तो सबसे ज्यादा हैलोजन ग्रुप में हम बात करेंगे किसकी होगी, आयोडीन की, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा और क्यों होगा, साइज ज्यादा है तो साइज ज्यादा होने के कारण मास ज्यादा होने के कारण सरफेस एरिया ज्यादा तो वॉन डेर वाल्स फोर्स इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होंगी। वॉन डेर वाल्स फोर्स इंटरेक्शन ज्यादा है तो सिंपल सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सेम यदि हम बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी की, एक अनदर प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। तो एज वी नो दैट आर और Cl, और ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं कि RCl जो है इट इज अ पोलर बॉन्ड, यहाँ पर पोलरिटी है, एल्काइल ग्रुप में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो बिकॉज वी हैव शोन द सम पोलरिटी इट मींस वी कैन इजीली सॉल्युबल इन दी वाटर, तो ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द haloalkanes. Now what we have to discuss about the chemical properties, and if we go with the chemical properties what we have to do कि वो किस तरह की रिएक्शंस दे सकते हैं, किसके साथ किस तरह की रिएक्शन बनने के कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो जनरली haloalkanes गिव्स 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मैथ्यू। What is nucleophilic substitution? As we know, हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं, हमारे पास जो reagents हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा reagents होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस जो है क्या है, कम है, यानी कि जो पॉजिटिव का पार्ट कम हो गए, पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर लुईस एसिड जो है वो हमेशा क्या होंगे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज रिएजेंट व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच, जो क्या है इलेक्ट्रॉन के रिच है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन रिच की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, नेगेटिव वाले होंगे, या जिनके पास लुईस बेस हम बोलते हैं, लोन पेयर जिनके पास है वो सब किसी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हैलोएल्केन्स की जो करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस है, करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस का मीन जो वो हमेशा शो करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अपना चेन में से, रिएक्शन में से, और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल RCl है, तो RCl के अंदर ये नेगेटिव पार्ट होगा और ये पॉजिटिव पार्ट होगा। तो मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया, OH माइनस हम बात कर लेते हैं, मान लो हाइड्रोक्साइड आयन आया, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन इसको रिप्लेस करेगा और इसकी जगह क्या बन जाएगा, आप उसको रिप्लेस करके खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। We learn one by one what are the type of nucleophilic substitution reaction, वो कैसे प्रोसीड हो रही है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन नाम से पता चल रहा है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट, कंपाउंड में से कोई ना कोई एलिमेंट जो है दैट विल बी रिमूव, वो एलिमेंट रिमूव होगा और वो रिएक्शन प्रोसीड होगी। और जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ होती है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हम बात करें, डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जरूर होता है, हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड रिएक्शन गिव पैटर्न इट इज वेरी सिंपल, हम वन बाय वन इन सबको क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एज वी नो दैट एल्केन हैलाइड्स गिव्स अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन एंड इट्स specific reaction is nucleophilic substitution reactions. Okay, as we know that as we discussed already कि जो alkyl halides हैं वो nucleophilic substitution reactions होते हैं। अब ये होती क्या है nucleophilic substitution reaction, हम already थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कि ऐसे रिएक्टिव एजेंट या ऐसे अटैकिंग स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और वी कैन से लोन पेयर, वी कैन सिंपली से दे हैव अ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे दैट आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है उसके अंदर एक कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो हमारा हैलोजन ग्रुप है, क्योंकि हैलोजन ग्रुप्स के अंदर हैलोजन है नेगेटिव और कार्बन है पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इट विल बी अटैक ऑन द कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से हैलोजन को रिप्लेस करके खुद क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इट मीन न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस द
halogen group. That part is called nucleophilic substitution reaction. Just for example, as we know that, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि कार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू द पोलैरिटी, कुछ ना कुछ पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे हम हाइड्रोजन ऑक्साइड बात करें हम OH नेगेटिव इज जब हम वाटर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH नेगेटिव है। साइनाइड की HCl की बात करें तो वहाँ पे हमारे यहाँ KCl की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा, Cn नेगेटिव जनरेट होगा, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर उसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो इट विल बी अटैक ऑन द कार्बन, और जैसे वो अटैक करता है कार्बन पे, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक क्योंकि ऑलरेडी पोलैरिटी है, और वहां से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होकर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और हमारे पास एक न्यू कंपाउंड ऑब्टेन हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अब हमने जब बात करी है इसकी न्यूक्लियोफाइल्स की, तो न्यूक्लियोफाइल्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। हमने ये तो बात करी कि न्यूक्लियोफाइल है क्या, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं जहां पर दो ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि इन अ सेम न्यूक्लियोफाइल देयर आर टू एटम्स आर टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट व्हिच कैन बी डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि वहां पे दो डोनेटिंग सेंटर्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल गिव द साइनाइड, तो साइनाइड फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर KCl, ओके, तो KCl का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दिस K+ एंड साइनाइड Cl नेगेटिव, तो साइनाइड के केस में साइनाइड क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, कार्बन नेगेटिव चार्ज है तो बॉन्ड जब बनेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन से बॉन्ड बनेगा। बट इन सर्टेन केसेस क्या हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस केस में कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है कि नाइट्रोजन भी क्या कर दे, अपने बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो इस साइनाइड में हमारे पास दो डोनेटिंग सेंटर है, कार्बन और नाइट्रोजन, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जहां पर दो डोनेटिंग सेंटर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, किस कौन सा सेंटर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंपाउंड्स बनाएगा। जैसे साइनाइड यदि कार्बन डोनेट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सिंपल एल्काइल साइनाइड बना देगा, लेकिन नाइट्रोजन कर रहा है तो बॉन्ड किससे बनेगा, नाइट्रोजन से, और ये क्या बनाएगा उस कंडीशन में, आइसोसाइनाइड्स बनाएगा। सेम ऐसे ही हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का और एग्जांपल लें तो देयर इज अ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो न्यूक्लियोफाइल NO2 नेगेटिव, तो नाइट्रो जो न्यूक्लियोफाइल है वहां पे भी हमारे को दो सेंटर्स मिलते हैं, एक तो हमारे को मिलता है नाइट्रोजन लोन पेयर प्रेजेंट है, दूसरा हमारे को मालूम है ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर और साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो जहां भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आ जाएगी हमारे पास रिएक्शन में, हमें कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि जो हमारी कंडीशंस आ रही है वो कंडीशंस कौन सी है, क्या कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या नाइट्रोजन वाला जो है वो यूज हो रहा है। तो लेटर वी विल डिस्कस वन बाय वन दिस। तो अभी हमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स को सिर्फ समझना है और कैसे रिएक्ट करेंगे, कहाँ हमें पता चलेगा, वी विल डिस्कस लेटर। नाउ दिस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो टाइप्स की होती है, कौन सी, SN2 और SN1। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन एंड SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। What is this meaning? SN2 substitute nucleophilic bimolecular reaction. Substitute nucleophilic bimolecular reaction. Bimolecular reaction का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। दो रिएक्टेंट कौन से हमारे पास, हमें मालूम है एक तो हमारा हेलोएल्केन्स है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। तो जब भी रिएक्शन होगी दोनों रिएक्टेंट है, और यदि रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है कि कितना न्यूक्लियोफाइल है और कितना एल्केन हैलाइड्स है, उस पर डिपेंड कर रही है, तो हमारी रिएक्शन जो है वो किसके हिसाब से प्रोसीड होगी, SN2 के हिसाब से चलेगी। पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो SN2 के हिसाब से चलेगा। और ये SN2 जो है इसका मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, जो हम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। अब ये SN2 जो रिएक्शन है वो होती कितनी है, कैसे होती, एक स्टेप में, यानी कि सिंगल स्टेप में क्या होगा, हेलोजन वाला जो बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड, ये रिमूव होगा और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो मेक होगा। यानी कि इट इज अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में सारा काम होगा, लेकिन जो डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्पीड ऑफ जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, दोनों कंसंट्रेशन पे करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे
और हेलो एल्केन कंसंट्रेशन पे, इस केस को हमने SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन बोला है। अब होता क्या है इस SN2 रिएक्शन टाइप में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कि जब भी कोई एल्केन हैलाइड SN2 टाइप के रिएक्शन से प्रोसीजर होगा, SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो वहां पर जो कंपाउंड बन रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंपाउंड्स होंगे उनकी जो ओरिएंटेशंस है, ओरिएंटेशन का मतलब स्पेस के अंदर जो उनका ज्योमेट्री है वो इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो SN2 वाले जितने भी होंगे वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन को शो करेंगे। इसको हम और डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके एग्जांपल से समझते हैं कि होता कैसे है। तो होगा क्या देखो कि मान लो हमारे पास एल्केन हैलाइड है, ठीक है, और आपको मालूम है इस एल्केन हैलाइड की जो बात करूं सिंपल, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो जब हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये हमारी देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है यहाँ पे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है क्लोरीन ग्रुप आगे की साइड अटैच्ड है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है SN2 रिएक्शन के अंदर वो कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कार्बन पे अटैक करेगा तो देयर आर इज अ इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। उस इंटरमीडिएट स्टेट में हो क्या रहा है कि जैसे इसने अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ने अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया और यहाँ से क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हुआ, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेक डाउन बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली। एक साइड से बॉन्ड टूट रहा है और बैक से बॉन्ड बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन की क्या हो गई 5 वैलेंसी और जो कि क्या हो गई अनस्टेबल है, तो ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन जो है वो बहुत अनस्टेबल होता है और फटाफट से ये वाला हमारा जो ग्रुप है यहाँ से लीविंग होता है और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से बन जाता है। तो आप देख रहे हो कि पहले जो हमारा मेन ग्रुप था क्लोरीन वो कहाँ था, आगे की साइड में जुड़ा हुआ था। यदि मैं इसको सिंपल एक्सप्लेन करूँ, इन्वर्जन और कॉन्फिगरेशन को सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन का है आगे की साइड में जुड़ा हुआ है और हमारा जो पीछे है इसमें जो आउट ऑफ द प्लेन ये पढ़ चुके हैं कि बीच का मतलब और इनका मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन एटम है या इन ऑफ द प्लेन एटम है। और जैसे ही पीछे से अटैक किया तो जो हमारा बल्कि अल्कोहल ग्रुप है वो पीछे की साइड अटैच हो, यानी कि पहले इसका ओरिएंटेशन इस साइड था, अब मैं बात करूँ तो इसका ओरिएंटेशन इधर हो गई है। तो इस केस के अंदर हमेशा SN2 जो रिएक्शन है उनमें हमेशा जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उनका जो ओरिएंटेशन है रिएक्टेंट से हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। इसलिए इसमें यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस हो रही है। अब हम बात करें कि यदि हम प्राइमरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड्स की बात करते हैं तो आउट ऑफ देम कि कौन सा SN2 रिएक्शंस को फॉलो करता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो कहाँ से अटैक कर रहे हैं, पीछे से अटैक करते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेंगे और पीछे यानी कि बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप आ जाए, अभी तो यहाँ हाइड्रोजन न्यूक्लियोटाइड इथाइल, लेकिन मान लो यहाँ पे इथाइल होगा तो यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा, मान लो पर्पल आयन है तो यहाँ पे 2 CH2 ग्रुप होंगे। तो जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, या फिर मैं बात करूँ जैसे जैसे हम बात करें प्राइमरी हैलाइड्स की कि टर्शियरी हैलाइड्स की बात करें तो 2 CH3 होंगे, 2 CH3 ग्रुप्स हो जाएंगे। टर्शियरी हैलाइड्स की बात करें तो यहाँ तीनों जगह CH3 ग्रुप होंगे। तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने की स्पेस क्या होगी, उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि बल्कि ग्रुप होंगे तो ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप अटैच होने की स्पेस कम मिलेगी, तो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि टर्शियरी यहाँ पे है तो रिएक्शन बहुत कम होगी, बहुत धीरे होगी, और प्राइमरी हैलाइड्स है तो इजीली रिएक्शन होगी क्योंकि बल्कि ग्रुप्स नहीं है, इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्राइमरी हैलाइड्स की। प्राइमरी हैलाइड्स यदि हमारे पास रिएक्शन है तो वो SN2 मैकेनिज्म से क्या करेंगे, अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। फिर सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड, और जनरली टर्शियरी हैलाइड जो है वो SN2 टाइप की रिएक्शन देते ही नहीं है, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN1 देते हैं, क्योंकि टर्शियरी हैलाइड्स में क्या है बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पाता है। तो जब इसलिए टर्शियरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी SN1 के लिए, SN2 के लिए क्या है सबसे कम है, और टर्शियरी हैलाइड्स जो है वो कौन सी तरह की रिएक्शन देते हैं, SN1 देंगे, वही सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे, दूसरे मैकेनिज्म से अपने प्रोडक्ट को शो करेंगे। तो SN1 इट मींस यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, और वो रिएक्टेंट कौन सा है, एल्किल हैलाइड्स है। तो बॉय मॉलिक्यूलर का मतलब है दोनों पे डिपेंड करती है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि सिंगल रिएक्टेंट पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन
डिपेंड कर रही है, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, लेकिन ये वन स्टेप प्रोसेस है और ये टू स्टेप प्रोसेस होगा। तो स्टेप अपोजिट है यहाँ पे। अब होता क्या है इसके अंदर, टू स्टेप प्रोसेस के अंदर सबसे पहले मान अभी हमने डिस्कस करा कि जब टर्शियरी हैलाइड्स है वो जनरली SN1 टाइप की फॉलो करते हैं, तो हमने यहाँ एक टर्शियरी हैलाइड्स को लिखा। इस टर्शियरी है तो 3 कार्बन इससे जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री कार्बन और उसके 8 कार्बन से दो में जुड़ा है, इसका मतलब इट इज अ टर्शियरी हैलाइड। तो जैसे ही टर्शियरी हैलाइड्स पर सबसे पहले हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसमें होगा क्या, इनकी प्रेजेंस ऑफ जनरली जो SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन है प्रोटिक सॉल्यूशंस में कराई जाती है। प्रोटिक सॉल्यूशन का मतलब वहां पे एसिडिटी को इंक्रीज करके या H+ आयंस को इंक्रीज करके रिएक्शंस कराई जाती है। क्यों, ताकि पोलैरिटी जो है इंक्रीज होके और फटाफट से बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में SN1 में क्या होता है कि हमारा जो ग्रुप है उसका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है, और जैसे ही बॉन्ड क्लीव होगा हमको मान लो Br- दिखेगा और C पे क्या चलेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और ये जो हमारी क्लीवेज वाली रिएक्शन है ये कैसी है, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन है। रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन का मतलब इट इज वेरी स्लो टाइप रिएक्शन, और हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो स्लो प्रोसेस होता है वही हमारी रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस है। तो इस रिएक्शन में कहीं भी हमारा न्यूक्लियोफाइल काम में नहीं आ रहा है, सिर्फ हमारे पास एल्किल हैलाइड है, इसलिए SN1 टाइप की रिएक्शन है। अब जैसे हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया, टर्शियरी में तो ऑब्वियसली टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, और हमें मालूम है टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है सेकेंडरी और प्राइमरी से। अब इस टर्शियरी कार्बोकैटायन के अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये फास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होगी और हमारे को एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इट मींस कि हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा टर्शियरी कार्बोकैटायन जितने ज्यादा स्टेबल है तो सबसे ज्यादा रिएक्शन भी कौन देगा, टर्शियरी हैलाइड से देगा। तो टर्शियरी हैलाइड्स हमारे को SN1 टाइप की रिएक्शन से पूरा फॉलो होंगे, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी जो किसी होगी, प्राइमरी हैलाइड्स की होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि यहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, SN1 टाइप के रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। This is all about the nucleophilic substitution reaction. In the next lecture, we will learn about how these reactions are proceed with the alkyl halides with different kinds of nucleophile. Thank you.